What to read? From where to prepare? Who to seek guidance from? Often standing in the way of professions like air hostess. So today we are here to break every hurdle comes in and cover everything you need to know. So ladies and gentlemen, Devi or Sajjano, welcome to our podcast. Thank you for joining with us. This is your host Neha Yadav, and get ready to dive into the fascinating world of cabin crew. Today we are talking about the lifestyle of cabin crew members. And अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हमारे साथ है नुपुर झा, a cabin crew. इतनी अच्छी चल रही तेरी, ये एयर होस्टेस का जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? I like my job. Good morning, captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt. Thank you, Nupur, for joining us. We are grateful to have you here. So how's your journey? First of all, thank you for having me today. My journey was amazing. I went to Melbourne in Australia, and for the first time in my aviation career, I got to explore with the whole set of crew. सब लोग 16, हम 16 crew थे. सब लोग बहुत अच्छे थे. सब लोग साथ में बाहर गए. एक अर्बन सर्फ करके एक स्पॉट है, एडवेंचर स्पॉट, वहाँ पे गए. और अभी वहाँ पे ठंड बहुत है, इसके लिए हम लोग पानी में नहीं गए, बट वी कुड सी द सनसेट एंड वी कुड सी द व्यू. इट वाज अमेजिंग. Okay, so what made you choose this career? Like, So was it a like glamorous lifestyle or love for travel or a mix of both? So, how I started this career. I remember I was in 11th standard, and in 2016, the movie Neerja was getting released in the month of February, and I had my final exams in the month of March in 2016. So I was so fascinated about this profession. So I went to watch this movie. I loved it. I loved her work. I loved the way she sacrificed her life. And also when I came back, I had this thing in my mind, but I didn't share this with my family, with my parents. After I did my exams and all, I spoke about this to my parents, and I told them that I want to go for this career. They were okay with it. We all were in a question that how will you get into this? And luckily I had one of my brother's friend's sister who is already working for an airline, who was working for an airline. So at that point of time, I just spoke with her. I took her guidance, and I got into the aviation. So this was the story. Oh, so what was your parents' reaction like? If you talk about the particular society, so there is a lot of myths and stereotypes, like it's not safe, also it's kind of a no long-term kind of a thing happens in aviation. So what was their reaction, on especially your friends, how they react on it? So if you talk about me personally, my parents have been very cool about me choosing any profession. And if you talk about society, I think you cannot make everyone happy. You have to stand for yourself, and until and unless you do not work, you do not get to know the reality. And when I started working, even I used to think that this profession might not, be safe for me. But what is safe? Everything is risky. सब कुछ risk है life में. मतलब, you can die at any point if it is meant to happen. So safety, if you ask about safety, I don't think, it is unsafe to fly. My parents initially used to give me a call whenever I used to take off, whenever I used to land. For good 2 years, they've been, in touch with me कि landed safely, अच्छे से land हो गई, कैसा रहा. उसके बाद they become normal about it, that it's good, अच्छा है, अच्छा option है, like, So parents or friends supportive rahe hain throughout the journey. No matter I was struggling to stay alone. बहुत मुश्किल हो रहा था शुरू में अकेले रहना, पेरेंट्स से दूर. फेस्टिवल्स पे सब साथ में मिल रहे हैं, छठ पूजा और हर फेस्टिवल में सब साथ हैं, और मैं फैमिली से दूर किसी और शहर में, किसी और कंट्री में हूँ.
तो शुरू में बहुत मुश्किल हो रहा था, बट सब लोग काफ़ी ज़्यादा साथ रहे और वीडियो कॉल कर करके बताते थे सब कुछ. अगर मंदिर जा रहे हैं तो दे यूज्ड टू कॉल मी. एंड So होम सिकनेस तो रही है, होती है. दैट इज देयर इफ यू वांट टू अर्न एंड इफ यू आर फ्रॉम, आप छोटी जगह से हो अगर, तो आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा लाइफ में. So we often heard this term glorified waitress or high paid waitress, right? So what's your take on it? Was it so या फिर it's just if you talk about waitress, so I would like to add on where मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए ट्रेन होते हैं. जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हम हमेशा फ्लाइट पे जाने से पहले प्रे करते हैं कि बेस्ट हो. वर्स्ट के लिए ट्रेंड है बट बेस्ट हो, which I've been trained for. So I'm okay. If you call us waitress, I'm fine with it. yeah. No big deal. So आपने जैसा कि ऐड करा अभी कि हम बहुत इंटेंस ट्रेनिंग के साथ हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है. तो वो सारी ट्रेनिंग क्या होती हैं जो इनिशियल डेज पे आपको दी जाती हैं? तो वो क्या क्या कंटेन करती है ट्रेनिंग? लाइक आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है उसमें? ओके, सो सब एयरलाइन की अलग अलग डीजीसी के अकॉर्डिंग भी होता है और एयरलाइन के अकॉर्डिंग भी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अलग अलग होता है. सो प्रीवियसली व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर डिफरेंट एयरलाइन, I've been through 3 months of training, 3.5 months of training. अभी वाली एयरलाइन में 4.5 महीने की ट्रेनिंग हुई. तो इस ट्रेनिंग के दौरान सेम ही होता है सब कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है. सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिर डेंजरस गुड्स और फायर ड्रिल, डिचिंग ड्रिल, communication of course, and grooming. This is what we've been taught about. So इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस हो गया स्कूल कॉलेज करने के बाद, I don't have to study. But it was not there only. मतलब when I joined and I got through interviews, the interview भी बिल्कुल easy नहीं होता है. उसमें भी 4 rounds होते हैं which you need to get through. So 4 rounds. There were 4 rounds. First round includes group discussion. They look at you, how you talk. Second round includes your height, weight, and BMI and all. So, and the scars. They're very particular about scars. And the third round, it consists of this personal round, which you just have a one-on-one interview, and the last is with the HR. फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है. So जो ट्रेनिंग होती है वो सुबह 5 बजे से you stay up, you get up, you go for the training, you come back around 7 PM in the evening, and you come back, you revise, you sleep, you get up. This is how you continue. So training was fun, but at the same time it was very difficult to complete. So as you talk about the hectic schedule and all, so क्या कुछ health पे effect पड़ता है as you travel city to city, country to country and high altitude to the lowers, right? So इसके बहुत कुछ आपके health पे, और if you talk about the personal life, relationship, इन सब पे भी पड़ता होगा effect. So what are those effects you like to conclude with? So definitely you have put a good point to talk about. So ये जब स्लीप साइकिल और सब कुछ अफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्केड्यूल भी खराब हो जाता है. सो व्हेन आई फ्लाई एंड आई लैंड समटाइम्स आई लैंड इन ड्यूरिंग द नाइट, आई एम फ्लाइंग ओवर द नाइट एंड लैंडिंग इन द मॉर्निंग. पूरा रात की नींद इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू. So what I do is when I'm landing, I make sure that I do yoga. I make sure my diet is, I follow the diet, and also वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फ्लाइंग. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपका हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे ऑटोमेटिकली, और फिर उसके बाद आप बीमार हो जाओगे और यू विल एंड अप लीविंग द जॉब. सो आप घर पे वर्कआउट करते हो या फिर कहीं फिक्स, क्योंकि ले ओवर्स डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, तो एक फिक्स प्लेस नहीं है, राइट? तो वो कैसे मैनेज करते हो आप डाइट्स एंड ऑल, वर्कआउट एंड ऑल? सो फॉर्चुनेटली जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, कंपनी इज प्रोवाइडिंग अस ऑल द एमिनिटीज एंड पर्क्स. वेयर सपोज घर पे भी इफ आई एम वर्किंग आउट, आई डू योगा एट होम, बट आई गो टू द जिम और आई रन. मैं अपने सोसाइटी में भाग लेती हूँ. और अगर मैं लेओवर पे जा रही हूँ
so we can go use the gym. We have the yoga mats inside our room, and also you know when we go on a layovers, we eat properly, proper diet we get. तो सब कुछ balanced हो सकता है if you want. So बस आपको एकदम rigorously करना होगा वो. Being on a flight, you meet people from all over the India, all over the country, right? So बहुत सारे पैसेंजर मिसबिहेव करते होंगे या फिर कुछ समथिंग some story you have encountered, so you would like to share with us on board. Yeah, definitely. So I, you know, for me every flight is a learning flight. हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, हर दिन कुछ डिफरेंट लोग भी हैं और कुछ फनी भी होते हैं. बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग काफी इरिटेटेड होते हैं because of the delays and all. So I remember one of the incident long back, you know, in 2020 before COVID. So I was flying from Delhi to Udaipur, coming back to Delhi, passengers Udaipur से लेकर. So I remember बहुत मौसम खराब था during the monsoon. मौसम खराब था and सब लोग passengers on board आ चुके हैं. Flight take off नहीं हो पा रही है because मौसम इतना खराब था that we did not get the clearance to take off. So since we were waiting there, captain announced that we do not have any update on the same. We'll get back to you once we get an update. So फिर वापस ऐसे करते करते 4-5 घंटे हो गए और 5 hours के बाद there was this passenger I very well remember seated on 25th row, जो लास्ट में होती है. पीछे हम 2 क्रू होते हैं, आगे 2 क्रू होता है. तो जो पीछे दूसरी क्रू है, सीट पॉकेट में से उससे मैगजीन निकाल के उसको हिट करने आया. He was coming towards her. Literally the passenger was so good मतलब उस दिन कि they started shouting at him कि what are you doing, stop. फिर क्या हुआ, फिर उस पैसेंजर को पूछा जाके मैंने कि what made you do this, because what you did is unacceptable. So he was like, he was drunk first of all. He was drunk very, very badly. So he told us that, you know, his grandfather passed away in the morning and this was the last flight he was about to take. This was the last departure he could go. And he was like, I have to reach by tomorrow. उनके जो लास्ट राइड्स हैं उसके लिए उनको कल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. So ऐसे लोग भी हैं कि गुस्सा आ रहा है तो उनके दिमाग में है कि किसी को मारेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा. किसी के हाथ में नहीं है. इवन वी वांट टू गो होम, राइट. हमें बड़ी मजा आ रहा है फ्लाइट के अंदर बैठने में. तो बस यही था. और उसके बाद थैंकफुली उसने कुछ किया नहीं. अगर वो करता था तो ही वुड हैव बीन इन अ बिग ट्रबल. और तो आप लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी सीइंग ऑल दिस पैसेंजर्स. तो आप लोग ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकालते हो, लाइक हाउ यू मैनेज दिस थिंग्स? Okay, so it's very interesting. For mental peace, if you talk about it. I got you. So, you know, if we go on board and जो crew होता है ना आपस में, वही एक दूसरे को cheer up करता रहता है. उनको समझ आ जाता है शक्ल से कि चेहरा उतरा हुआ है. जैसे ये पीछे आई है, इसका चेहरा उतरा हुआ है. That means something is wrong. She'll ask you, what happened? Tell me. You'll tell her. She'll cheer you up. You know, वो कोई joke crack कर देगी उस passenger के बारे में, so that you'll start laughing. And then you go back in the cabin and you'll smile. So this is how, you know, and if not that, I think mostly यही होता है that you cheer each other up. That's it. यही है जो मुझे लगता है on board frustration kill करता है, but घर आके कुछ और. Why one should choose and who should choose this career? Like what motivates someone to do, like come into this profession? So I think if you're very, very passionate about this job, then definitely you should go for it. Because मैंने कुछ लोग देखे हैं जो 2 महीने आते हैं and then they leave this job. आप 2 महीने तक आए और उसके बाद आप नहीं हैंडल कर पाते हो situations on board जो होती है. You have no patience left. So I think if you are patient and if you are empathetic, I think emotionally intelligent होना is very important if you want to come into this profession. And also I feel that you have that courage to sacrifice few things, which I believe all of us, you know, जो भी bachelors यहाँ पे रह रहे हैं, every one of us are struggling.
So that is there. I think कोई भी ये चूज कर सकता है इजीली, बट ये चीजें अगर हैं तो ही जाना चाहिए है किसी को. अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो आई थिंक जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यू गो थ्रू द ट्रेनिंग क्योंकि आप स्मार्ट थे पढ़ने में या फिर आप थे अच्छे इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, बट इन रियल जब आप जाते हो और वो सिचुएशंस आपके साथ हो रही होती है तो क्या आप उतने स्ट्रांग हो वो हैंडल करने के लिए, वो चीज आपको चेक करनी है. वो आपको यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू वर्क. बेसिकली इफ यू से लाइक स्ट्रांग हेडेड एक मेंटालिटी बना के रखो कि लाइक बिफोर गोइंग इनटू इट, राइट? करेक्ट. हाँ, और बहुत लोगों को ये पता नहीं है ये जॉब. लाइक इनिशियली आई हैव हर्ड लाइक पर्सनली, सो इफ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन दिस प्रोफेशन, सो व्हाट आर दोस? I disagree with this because these many years I've experienced few airlines still hire the age above 40 years. They still hire you. And if you continue working for an airline, एकदम loyalty आ जाती है तो आप stay कर जाते हो. You keep working. जैसे American Airlines है, British Airways है, Air India है. इन एयरलाइंस में अभी भी काफी एज्ड, मतलब लाइक अबव 40-45, दे आर स्टिल फिट एंड फाइन एंड दे आर स्टिल वर्किंग. सो आई थिंक इट्स नथिंग टू डू विद सिक्योरिटी, एज लिमिटेशन, कुछ नहीं है. इफ यू आर फिट टू फ्लाई, यू गुड टू गो. दैट्स इट. इफ यू टॉक अबाउट द डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड द इंटरनेशनल, सो व्हाट डू यू प्रेफर? व्हिच वन इज बेटर according to you? Definitely an international trip I would prefer, because if you see domestically, if you'll go, you'll face so many challenges. They'll keep pressing the call bell, बार call bell बजा के, नहीं भी कुछ जरूरत है तो भी they'll call you again and again. और इतना टाइम नहीं होता है that you'll handle each and everything. किसी को कोई बारिश के टाइम पे सपोज गिर गया, उसके चोट लगी है, उसकी ड्रेसिंग चल रही है, बट इन्हें चाहिए चाय कॉफी. Do you really think कि ऐसे होता है? Just have some humanity. फिर at the same time I think internationally when you go, they're least bothered. They'll just ask you maximum खाना खा चुके हैं, they'll sleep. 13 hours की flight होती है, they'll eat and then they'll sleep peacefully. They won't bother you much. Call bell बजा के नहीं बुलाते हैं. But domestically बहुत अलग है. Domestically पहली बार वाले flyers भी होते हैं, तो उन लोगों को रहता है कि ये बटन किस चीज़ का, ये बटन किस चीज़ का है. So they press those buttons again and again, then they call you. आपने कोई ऐसा encounter किया हो जो funny हो? Any story you'd like to mention? अगर मैं international flight कर रही हूँ तो अगर if a passenger is suffering from a headache, he'll just ask me for a Dolo. अगर domestic flight कर रही हूँ, एक passenger था, वो मुझे बुलाकर कहते हैं कि डोलो है आपके पास? मैंने बोला हाँ जी है. आपके सिर में दर्द है? कहते नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में अगर हुआ तो उसके लिए एक दवाई दे दो. लाइक सीरियसली, अभी दर्द नहीं है लेकिन आपको दवाई चाहिए क्योंकि आपने पैसे खर्चे हैं, टिकट पर डिस्काउंट लगे नहीं कि आप दवाई भी लेकर जाएंगे. सो यस, ऐसे होते हैं पैसेंजर्स भी. Have you ever encountered any real life emergency on board? Yes, इतने सालों में बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी हैं और देखी हैं, मतलब लाइक मिसकैरेज होना. और अगर आपने सुना हो बेबी ऑन बोर्ड हुआ था थोड़े टाइम पहले कोविड में, इंडिगो एयरलाइंस में, दिल्ली से बैंगलोर या बैंगलोर से दिल्ली में विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, कैबिन क्रू ने बेबी ऑन बोर्ड मतलब डिलीवर किया था बेबी. और हार्ट अटैक होता है, बहुत रेयर है, बट मेरे हिसाब से अगर रात की फ्लाइट होती है और पैसेंजर्स को मोस्टली डिनर करने के बाद ना यहाँ पे एसिडिटी की वजह से पेन होता है. सो ये एसिडिटी थिंग दे टेक इट एज वेरी सीरियसली दैट कार्डियक अरेस्ट ना आ रहा हो मुझे. सो डिफरेंस है कार्डियक अरेस्ट में और एसिडिटी वाले पेन में. अगर पेन एक्चुअली इट्स इन लेफ्ट साइड पूरा थ्रू आउट, पूरा लेफ्ट साइड बॉडी में पेन होगा. लेकिन अगर सिर्फ एसिडिटी है तो सिर्फ चेस्ट में पेन होगा. तो सिर्फ गर्म पानी पे उसमें नींबू डाल के देते हैं, वो भी ठीक, उससे ठीक हो जाता है बहुत जल्दी. लेकिन जैसे चाय कॉफी गर्म गिरा लेते हैं लोग अपने ऊपर, ये सब चीजें कॉमन है. एपिलेप्सी, अगर आपको पता हो एपिलेप्सी के बारे में, उसमें फिट्स दोहरे आते हैं, यू शेक योरसेल्फ, उसको एपिलेप्सी कहते हैं. तो वो बहुत कॉमन है. लंबी फ्लाइट होती है 12-13 घंटे की, उसमें ये जरूर होता है.
So yes, ये सब होता रहता है. सो डॉक्टर अगर ना हो, सो जैसे आपने मिसकैरेज वाला बताया, सो लकीली देयर वाज अ डॉक्टर, राइट? नहीं, I didn't say that there was a doctor Okay, in miscarriage. okay. Baby on board में luckily we had a doctor. हम लोग सब trained है, ओके. but we do not have doctors on board every time. हम लोग first aiders हैं, हम लोग doctors नहीं हैं. ट्रू. First aiders are the ones who have knowledge of medicine, basic knowledge of medicine. सो देयर इज इतना कुछ, हम जितनी भी एयरलाइंस के बारे में नेट पे देखते हैं, तो देयर इज नथिंग अबाउट द स्पेशल एबिलिटी वाले जितने भी पर्सन हैं, डिसेबल्स हैं, उनके बारे में नेट पे तो कहीं नहीं मिलेगा. सो आई पर्सनली वांट्स टू टॉक अबाउट दिस कि लाइक हाउ यू हैंडल, या लाइक उनको आप कैसे ट्रीट करते हो जो स्पेशल डिसेबल पर्सन्स हैं ऑन फ्लाइट. तो उनको क्या कुछ अलग उनके साथ आपको रहना पड़ता है? So you know, we handle them very delicately क्योंकि already they've been through so many things. पूरा फ्लाइट से आने से पहले 2 घंटे से they've been at the airport. It's very difficult for them to, you know, sit there. And when they come on board, we try to keep them जितना पास हो सके हमारे, so that कुछ भी चाहिए है तो we'll be available for them at any point of time. So देखा जाए तो अगर छोटी फ्लाइट है तो it's very easy to handle them. लंबी फ्लाइट होती है, वी गो एंड कीप चेक ऑन देम, बार बार जाके वी चेक ऑन देम. और स्पेशल जो एबिलिटीज वाले पैसेंजर्स होते हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है प्रॉपरली, तभी वो लोग आ सकते हैं, तभी वो फ्लाई कर सकते हैं. वो पर्सनली डॉक्टर से पता करके पर्सनली डॉक्टर से रिटर्न में लेकर आते हैं कि क्या वो फिट टू फ्लाई हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं या नहीं. सो यस, ये होता है. सो जब आप पहली बार फ्लाइट में एज अ कैबिन क्रू चढ़े थे, राइट? सो माय लिसनर्स को अपनी स्टोरी वो बताना चाहेंगी आप, तो इट विल बी ग्रेट फॉर दैम. लाइक आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था ऑन बोर्ड एज अ कैबिन क्रू? सो हम सबको अपना पहला दिन याद होता है. मुझे भी अपना पहला दिन बहुत अच्छे से याद है. जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में अपना यू नो फ्लाइंग करियर, आई रिमेम्बर आई वाज अ बिट नर्वस and you know very innocent, but you know जब फ्लाइट के लिए जा रही थी काफ़ी एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी. फ्लाइट पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मतलब इतना अच्छे से नहीं देखी थी फ्लाइट के बारे में, बट आफ्टर आई स्टार्टेड फ्लाइंग आई गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स. इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी मेरी फर्स्ट फ्लाइट पे कि जब हम लोग, आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता, और मुझे कोलकाता में 2 दिन रहना था. तो हम सब लोग कोलकाता में लैंड हुए, हम होटल पहुँचे, हम लोग स्टे कर रहे थे नोवोटेल में, हम होटल पहुँचे और मेरे साथ इन लोगों ने, जो मेरे साथ क्रू थे, उन लोगों ने प्रैंक किया जस्ट टू मेक माई स्टे मेमोरेबल, टू जस्ट मेक माई फ्लाइट मेमोरेबल. व्हाट दे डिड इज, मुझे अभी 5 of us were there, ठीक है, उसमें से 4 लोग हम साथ में डिनर कर रहे थे और हमें अगले दिन जाना था. हम चारों बैठ के खा रहे हैं, एक के दिमाग में क्लिक होता है कि सामने वाला जो दरवाजा है वो जो 5th क्रू है उसी का ही है, लेट्स नॉक एंड उसको परेशान करते हैं, भाग के रूम के अंदर आ जाएंगे. तो मुझे बोला गया यू गो एंड नॉक, फटफट नॉक करके विल ओपन द डोर फॉर यू, यू विल गेट इन. I didn't know that room was not, you know, it was not her room. मैंने नॉक कर दिया और मेरे लिए इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया. नॉक करके वहीं खड़ी हूँ, कोई लड़का बाहर आता है. It was so embarrassing for me. I was like, I'm so sorry, I didn't do it. So yes, that was so, you know, memorable for me. Okay, तो बहुत सिटी टू सिटी आप बहुत लोगों को मिलते हो इस प्रोफेशन में, राइट? आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप मिलोगे ही मिलोगे. सो ऐसा कोई पैसेंजर जिसने आपके साथ लाइक ही आस्क्ड यू आउट और फ्लर्ट विद यू, या फिर यू लाइक्ड समवन ऑन यू नो बोर्ड? Okay. ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? पहले when you know I used to work for the previous airline, वहाँ पे we had an identity, full name we used to have. We used to call, we used to announce full name. They used to listen to our names and after landing they used to send us the friend request on Instagram and Facebook. Message request where they used to send, do you remember I was wearing a black colored t-shirt, I was on your flight? I'm like, दिन में 800 लोगों से मिलते हैं, कहाँ याद रहेगा कि तुम कहाँ बैठे थे? और so this is how it used to be. मतलब it is funny, but I think I never met anybody on board. Flight में turbulence is common thing, right? So
how you tackle and what you want to suggest our viewers कि like क्या कुछ करना चाहिए उस टाइम पे, क्या कुछ प्रिकॉशंस या क्या कुछ मेजर स्टेप्स लेने चाहिए उस टाइम पे, अगर कोई इंसान है बहुत इफ सेंसिटिव राइट, तो उसके लिए कुछ आप बोलना चाहो? So first of all, this is not in anybody's hand. It is, it depends upon the weather. Weather conditions are not in our hand, But what we suggest is, if you are scared of turbulence, you should not take the seats behind. Rather, you should book seats which are in the front. क्योंकि आगे कम turbulence होता है comparatively पीछे से. So from outside, it looks very glamorous lifestyle. So जैसा ये दिखता है वाकई में ये ऐसा होता है, या फिर देर कुछ डार्क रियलिटी या फिर कुछ ऐसा है जो आप इंक्लूड करना चाहोगे? So I think कौन से प्रोफेशन में नहीं होता है, but at the same time I think इस प्रोफेशन में इसीलिए एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है because we fly to different destinations, we get time to stay in the hotel. If you see from the point of view, of me, that जब हम स्टे कर रहे हैं हम इतने टायर्ड होते हैं लैंडिंग के बाद 4 सेक्टर्स करने के बाद, हमें टाइम भी नहीं मिलता है कि हम कहीं पार्टी करने जाएं. कभी टाइम मिलता है तो वी ट्राई कि हम अपने लोगों के साथ बैठे. हम इमोशनली इतने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं दैट वी बीन फ्लाइंग विद पीपल अराउंड यू जिसको आप जानते भी नहीं हो. हर दिन आप किसी दूसरे के साथ फ्लाई कर रहे हो, नॉट फ्लाइंग विद द सेम सेट ऑफ क्रू एवरी डे. आप हर दिन किसी दूसरे सेट ऑफ क्रू के साथ फ्लाई करते हो, आप सेम सेट ऑफ क्रू के साथ रोज नहीं फ्लाई करते हो. आपके इमोशंस हर दिन चेंज हो रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ये बाय चॉइस है और ये हर प्रोफेशन में हो सकता है. इट्स नॉट पर्टिकुलरली इफ यू आर अ कैबिन क्रू तो आप इसको बोलोगे कि ये इस प्रोफेशन में होता है. और until and unless you yourself do not work, you do not know the reality. और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपके सराउंडेड हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है कि रियलिटी क्या है, लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो सच है. हमें टाइम भी नहीं मिलता है पार्टी करने के लिए, और जो टाइम हमें मिलता है वी ट्राई टू गिव दैट टाइम टू आवर लव्ड वंस. और ग्लैमरस, yes, it is glamorous. We get to stay in a good properties, we get to stay, we have perks और काफ़ी amenities होती हैं. तो yes, glamorous तो है, but if you talk about glamorous in that way, I think it is not appropriate. बस ये. Okay, so one message you want to convey to पेरेंट्स जो भी हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं एयर होस्टेस को लेके, उनके पेरेंट्स को अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे जो इसको ऐसे स्टीरियोटाइप बना के कि जो हमारा ये प्रोफेशन है वो राइट नहीं है, तो उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? इट विल इनकरेज जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं, 9 to 5 जॉब अगर आप देखोगे, they are working, they are earning, they are giving those money and get compensated in a good way in terms of money. But हम लोग भी सेम काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली काम कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जिसका हमें मतलब भी नहीं है. स्टिल हम लोग लोगों की केयर कर रहे हैं ऑन बोर्ड जाके, हमें उस चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, बट स्टिल हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेल्फलेसली जाके उन पैसेंजर्स को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इट शुड समवेयर कंसिडर्ड एज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज. दे ऑल्सो गो ओवर एंड अबव टू प्रोवाइड सर्विसेज. एट द सेम टाइम हम लोग भी वैसा ही काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं, कौन देखने आ रहा है ऑन बोर्ड कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कैसे हैंडल कर रही हूँ. कोई सपोज समवन इज ट्रैवलिंग और वो अपनी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स जो हैं वो कार्गो में चेक्ड इन बैगेज में उन्होंने छोड़ दिया है. अब 13 hours, what that passenger is going to do? अब वो 13 hours के लिए we need to handle them. कि अच्छा अब आपके पास टैबलेट्स नहीं है, अब आप एंग्शियस नहीं हो, उसके लिए हम क्या करें? तब समझ रहे हो कि उस टाइम पे वी आर हैंडलिंग देम. इसके पैसे मुझे नहीं मिलने वाले हैं, बट आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई लव इट. सो आई वुड जस्ट समराइज इट कि अगर आपको ये लगता है कि यू कैन डू इट, आप एम्पैथेटिक हो, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने
बच्चों को नहीं रोकें तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रोफेशन भी ऐसा प्रोफेशन है वेयर यू विल गेट टू लर्न ह्यूमैनिटी, यू विल गेट टू स्टे हम्बल, और यू नो आपका यू नो EQ भी बहुत अच्छा हो जाता है. दिस मस्ट बी आई ओपनिंग फॉर आवर व्यूअर्स. ये सब जान के तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, न्यू जनरेशन, एवरीबडी इज सो क्यूरियस अबाउट दिस जॉब, सो इंटरेस्टेड फॉर लाइक एयरलाइंस, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू. ये इतना ग्लैमरस वर्ल्ड है कि सब कोई, हर कोई चाहता है, सबका इनिशियल गोल ही यही होता है कि आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी लाइक समवन लाइक यू. सो आप क्या कुछ यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहोगे, उनके लिए भी कुछ कि जिससे उनको हेल्पफुल हो, एक क्लियरिटी मिले कि यू आर एट द राइट ट्रैक, जस्ट फॉलो दिस मेजर स्टेप्स एंड यू विल गुड टू गो. So I would like to tell you that if you love to travel, if you love to meet different people, I think you are good to go. You'll get settled here. At the same time, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत challenging भी है. Mentally it affects you when you know कोई passenger all of a sudden they come and get agitated on you. Do not take it personally. वो आपको नहीं बोल रहा है, वो कंपनी को बोल रहा है. In short, you need to be a good listener at that point. अगर आप उसको सुनोगे भी बहुत अच्छी तरीके से तो उसको आधा काम वो वही हो जाएगा कि अच्छा someone is there who's listening. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यंगस्टर्स को ये प्रोफेशन चूज करना है तो डिसिप्लिन भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि ग्लैमरस दिख रहा है, इसमें तो मजे ही मजे हैं, पार्टी ही करने मिलेगा, पैसा ही कमाने मिलेगा. दैट्स नॉट ट्रू. बहुत से लोग हैं जो आते हैं और 2 महीने में चले जाते हैं. They do not stay. Why they don't stay? Because they can't take those challenges on board. They can't handle them. If you're prepared, then only you should come. Since you fly like from different cities to cities, so there must be some celebrities, like बहुत सारे celebrities आते होंगे crew पे जो भी है boat पे. तो फिर like how you respond to that? Like it कभी-कभी ये बहुत वो हो जाता है कि it's plus point for a cabin crew to meet a celebrity, तो उस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? Yes, they do fly. बहुत सारे celebrities, cricketers और influencers they fly. If I tell you one of my experience, like long back in 2019, MS Dhoni was traveling on my flight, and he was seated on 12th A. Just looking at him, everybody came towards him. We literally had to come to stop them. कि प्लीज आप लोग सीट पे बैठ जाइए, सब लोग आप आगे आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है. सीट पे बिठाना पड़ा और एक उनको प्रणाम करने के लिए सीट के अंदर घुस के, बट वी somehow managed to settle them down. So ये एक्सपीरियंस होता है, हम खुद एंजॉय नहीं कर पाते हैं कभी कभी. अगर कोई फेमस जो मतलब मुझे जो पसंद है सेलिब्रिटीज, अगर वो आ रहे हैं तो मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है उनसे इंटरेक्ट करने का. बट yes, I do like Shah Rukh Khan, and I wanted to see him, but I never got chance to. But I got to see MS Dhoni, or who else? There are so many celebrities now. Since I've started working in the business class, they usually travel in business class. तो business class में देखने मिलते हैं. जॉन अब्राहम हो गए, जैकलीन हुए, और आमिर खान हो गए. So yeah, Shilpa Shetty. So thank you, Nupur, for joining us and sharing your experience. It was an amazing journey. And thank you for flying with us. And rest, it must be eye-opening, and हमारे viewers को कुछ नया जानने को मिला होगा. So it will be like great journey with you. Thank you for coming here. Thank you. Likewise.